Hello everyone, today we are going to start our next question number 2 from the chapter 8 exercise 8.3 of class 8. So our question number 2 is Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum compounded yearly. Right? Kamla ने इतनी मनी बोरो करी है स्कूटर लेने के लिए, कहाँ से? बैंक से। कितने परसेंट पे? इतने परसेंट पे, और ईयरली एनुअली बोला है उसने। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years 4 months टू क्लियर द लोन। अब कहता उसे टोटली कितनी अमाउंट इतने टाइम के बाद देनी पड़ेगी। अब देखो ये क्वेश्चन सेम एज बी पार्ट है, यहाँ पे भी उसने 2.5 years दिए थे, सी पार्ट में भी यहाँ पे तो चलो उसने हाफ ईयरली दिए, यहाँ पे एनुअली में दिया था, यहाँ पे भी उसने एनुअली बोला है। तो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था 2 years के लिए हम लोग जो हमारा कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला होता है वही लगाया था, और हाफ ईयर के लिए हमने अलग से सिंपल इंटरेस्ट निकाला था। और यहाँ पे भी 2 years के लिए हम लोग कंपाउंडेड एनुअली करेंगे और 4 months के लिए अलग से क्या करेंगे, अपना फिर से वही सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. So first of all we will write principal amount. Right, principal amount. What is that? 26,400 rupees. So rate of interest, that is R, we can write it as a P. This is rate of interest, that is R, that is 15% they have given us, right? And the time they have given 2 years and 4 months, right? 2 years and 4 months. Okay, now first of all we will find the compound interest for 2 years. We will write here for 2 years. What is the formula of amount? Formula of amount is principal amount P plus 1 plus R upon 100 par T. Right? So P they have given 26400. Right? 1 as it is. Here we will write 15 and here we will write 100. And time, first of all we will finding for the 2 years, so time is 2 here. Right, now if cutting is possible then we can do cutting, otherwise we will do as it is. First of all take LCM. LCM is 100, right? 100 divided by 1, that is 100. 100 into 1, here 100. 100 divided by 100, again 1. 1 multiplied by 15, here 15. Right, now 26,400 as it is we will write here 115 upon 100 par 2. That means we will write this statements 2 times. 26400, this one 115 upon 100, again 115 upon 100. Right, now 2 zeros cancel with these 2 zeros. Right, now remaining 264, 115, again 115 upon 100. Now do multiplication of these numbers. Multiply these numbers. When we multiply, we will get 3491400 upon 100. Again 0 cancel by 0, so we will get 34914. Right, so this is the compound interest for 2 years. Right, now we will find out the interest for the last 4 months. So we will write here interest for 4 months or last 4 months. Right, interest for last 4 months. So now formula of simple interest, P into R into T upon 100.
Now we have principal amount 34914. This is our principal amount for the next 4 months, right? So rate of interest is the same 15%. Time 4 months. We will convert it into year. So 4 by 12. So this is 1 by 3 years. We will write here years, right? Years. Now simple interest. Put the values. P is 34914. R is 15. And this is 1 by 3. And upon 100. Right? 3 5s are 15. Now this 100 will remain as it is. Now do multiplication of 34914 into 5. When we multiply this, then we will get 17457 upon 100. So this will be equals to, okay, rupees, 2 zeros, 2 digits, 1. Then we will put point here. So this is 174 point. Oh, sorry. Here we will get 0 also. So point will be here. 7. So this is the rupees 1745 and 70 paise. This is the simple interest. Now we will add this amount and this amount. This is the compound interest for 2 years and 4 months. Amount for amount for 2 years and 4 months equals to 34 plus 1745.7. So this is right आंसर. तो ये हमारा आंसर. सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वही, क्योंकि 2 years 4 months दे रखे थे, जब भी हमें ऐसे दे रखा हो तो हमें, और कंपाउंडेड एनुअली बोला हो, तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा होल नंबर जैसे 2 years, तो 2 को पहले कंपाउंडेड एनुअली करके सारा सॉल्व करेंगे. उसका फॉर्मूला हमें पता है, यही होता है. तो हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व करके ये निकाल लिया. ऊपर के 4 month बोले हैं, 6 बोले हैं, 8 बोले हैं, उसके लिए हमें क्या लगाना होता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली में. मैं बार बार बता रही हूँ, कंपाउंडेड एनुअली. अगर हाफ ईयरली बोला होता तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है. यहाँ 2T लिखते हैं और यहाँ 200 आता है यहाँ पे, राइट. सो ये हो गया हमारा. फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला 4 months के लिए. तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 4 months का. तो ये हमारी हो गई सिंपल इंटरेस्ट. फिर मैंने ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट ऐड कर दी. इसका मतलब उसने इतनी मनी ली थी, लेकिन उसको देनी कितनी पड़ेगी, इतनी अमाउंट, राइट. मतलब जो भी बाकी का उसने फालतू में दिया है, दैट इज इंटरेस्ट फॉर द मनी, राइट. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is Favina borrows rupees this at this % per annum for 3 years at simple interest. कहता उसने मनी बोरो करी है इतने % पे और इतने टाइम के लिए. राधा borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. अब कहता एक फबीना दूसरी राधा. फबीना ने इतनी मनी सिंपल इंटरेस्ट पे ली है और राधा ने इतनी मनी 10% पे ली है कंपाउंडेड एनुअली. हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच. अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो हमें पता है सीधे ही लगाते हैं हम लोग, ऐसा ही है ना. और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ऐसा ही का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पार T. तो दोनों का अलग अलग निकाल के हम लोग बताएंगे कि किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है और कितना ज़्यादा किया है, राइट. सो फर्स्ट वी विल राइट फॉर फबीना. तो पहले हम फबीना की बात करेंगे. फबीना ने हमें सिंपल इंटरेस्ट पे
उसने सिंपल इंटरेस्ट दिया है ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट उसकी कितनी है, ₹12500। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके लिए कितना है, दोनों के लिए ये सेम है ना, ये सेम है, इसका 10% है। टाइम और अमाउंट सेम है, तो टाइम 3 years दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है क्योंकि उसने बोला है कि इसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिए मनी, तो फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T। तो फॉर्मूला कभी भी लिखना नहीं भूलना हमने। 12500, R कितना है 12, टाइम कितना है 3 और अपॉन कितना हो गया 100। 2 0 से 2 0 तो यहीं पे कैंसिल हो गई हमारी। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके सारा मेरे पास कितना आएगा 125। पहले मैं इनको करी हूँ, 12 3 36, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4500। दिस इज ₹4500। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया कि उसको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये तो उसका इंटरेस्ट हो गया, अब मुझे राधा का इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा। फॉर राधा उसका भी प्रिंसिपल अमाउंट उतनी, क्योंकि अमाउंट उसने उतनी ही ली है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका चेंज है, इसने 10% पे लिया। इसका टाइम कितना है 3 years, जितना उनका टाइम था सेम इसका टाइम होगा, उसने क्वेश्चन में ही बोला है। लेकिन यहाँ पे अमाउंट एनुअली बोला है उसने, कंपाउंडेड एनुअली, तो फॉर्मूला चेंज हो गया। 1 + R/100 पार कितना हो गया T। P लिखा मैंने 1, ये 10 हो गया हमारे पास 100, पार हो गई हमारी 3। देखो यहाँ पे वैसे तो कटिंग भी पॉसिबल है, हम लोग कटिंग कर सकते हैं ना। कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर कटिंग नहीं करते हम लोग तो सीधे भी कर सकते हैं। मैं सीधे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, क्या आएगा यहाँ पे एलसीएम लेंगे 100 आएगा, 100 को 1 से डिवाइड करेंगे 100 ही आएगा, राइट। फिर मल्टीप्लाई बाय 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 100। 100 डिवाइड बाय 100 1 मल्टीप्लाई बाय 10, दिस इज 10। तो ये हमारे पास क्या आएगा 110। पार तो एज इट इज़ रहेगी, तो यहाँ लिखा 1500 110 अपॉन 100 पार 3। पार 3 का मतलब इसको 3 टाइम्स लिखना है ना, तो 110 अपॉन 100 हो गया, फिर से 110 अपॉन 100 और फिर से 110 अपॉन 100, ठीक। अब यहाँ से एक 0 से ये एक 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, फिर ये 2 zeros में अभी इस 2 0 से ही कैंसिल कर रही हूँ, और एक 0 से ये एक 0 कैंसिल। नीचे सिर्फ हमारे पास क्या बचा 10। अब इस 1 to 5 को ऐसे लिख रही हूँ, 11 को 11 से किया 121, फिर 121 को 11 से किया तो 1331, मतलब 11 सब 121, 121 को फिर से 11 से ये आ जाएगा, अपॉन क्या आया 10। तो ये हो गया। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 166375, अपॉन मेरे पास फिर से क्या आएगा 10। अब पॉइंट लगाना है 0, तो एक डिजिट, फिर पॉइंट यहाँ लग जाएगा। कितना आया ये ₹16,637.50। ये आ गया हमारे पास अमाउंट। मुझे क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। तो अमाउंट कितनी थी उसने हमारे पास, ये हमारी अमाउंट आई है अभी 637.5 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, ये था हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ये आया मेरे पास 0.5, मतलब उसका कंपाउंड इंटरेस्ट ये बना, और उसका कितना आया था हमारे पास 4500, राइट। अब देखो किसका ज़्यादा हुआ फिर, राधा का या फबीना का, फबीना का ज़्यादा हुआ है ना, तो फबीना पे मोर इंटरेस्ट, फबीना पे मोर इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना किया वो हम माइनस करके बता देंगे, माइनस ये वाली अमाउंट जो आई है हमारे पास 0.5 करो, माइनस कितनी आएगी 362.5। तो ये हमारा हो गया आंसर, राइट। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. I borrowed rupees this from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. कितना मैंने मनी बोरो की इतने परसेंट पे
सिंपल इंटरेस्ट पे इतने टाइम के लिए। हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर कहता है ये मैं इतने % पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता हूँ तो मुझे कितनी अमाउंट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। वही सेम जैसे यहाँ पे अलग अलग 2 नेम्स दे दिए थे, यहाँ पे उसने अलग अलग नेम्स नहीं दिए, अपनी ही बात करिए कि अगर मैं यही अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे लेता हूँ और यही अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता हूँ तो मुझे कितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं लिखूंगी यहाँ पे इन केस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पर्सन की बात हो रही है आई, तो 2 ही सिंपल केसेस बनेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सो दिस विल बी इक्वल्स टू पी, ये आएगा ₹12,000, राइट। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस इज 6% एंड टाइम दे हैव गिवन 2 years। सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ मेरे पास, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना है 12,000, R 6 टाइम 2 अपॉन 100, राइट। अभी ये कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर दी, तो 120 और इधर आया 6 2 ज़ा 12, 12 ज़ा कितना होता है 144, पीछे 0 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ लिखेंगे यहाँ रुपीज़ इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, right? So again principal amount is same, rate of interest is also 6% and time also, all the things are same. So now we have the formula A is equals to P 1 plus R upon 100 par T, right? So 12,000 1 plus 6 by 100 par 2. Again we will take LCM. LCM is 100 here, 100 plus 6 upon par T, right? So this will be equals to 106, 12,000 106 upon 100, right? This means this thing we have to write 2 times 12,000 into 106 upon 100 into 106 upon 100. 2 zeros cancel by 2 zeros, 0 cancel by 0. When we multiply these numbers we will get 134,832 upon 10. After this is 0, 1 digit 1, then we will put point here, 13483.2. This is the amount and we have to find again compound interest. That is A minus P. 13483.2 minus 12,000 rupees 1483.2. This is the compound interest for 2 years and this is the simple interest for 2 years. In the question they have given what extra amount would I have to pay, कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट मुझे पे करनी पड़ेगी, तो कितनी करनी पड़ेगी वो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग फाइंड कर देंगे। एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे करेंगे, माइनस करके दोनों को, वो 40 आई, ये इतनी है मेरे पास, तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस करके देखो 43 rupees 20 paise. So this is the answer, right? Question number 3 is same as question number 4, कोई confusion नहीं है उसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है, right?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, कहता क्या अमाउंट उसको मिलेगी आफ्टर 6 मंथ्स, 6 मंथ के बाद, एंड आफ्टर 1 ईयर, और 1 ईयर के बाद। मतलब ये एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 6 मंथ्स के लिए और 1 ईयर के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल अमाउंट ₹60,000, yes, 60,000, rate of interest 12% and time is 6 months। 6 months को हम years में convert करेंगे तो 6/12, तो this is 1/2 years, right। now amount, क्योंकि हाफ ईयरली बोला है उसने, 6 months हाफ ईयरली बोला है उसने, है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो फॉर्मूला चेंज है। R अपॉन क्या होता है यहाँ पे 200 होता है, या 100 × 2, ऊपर पार्ट 2t, तो यहाँ 60,000 1 प्लस ये कितना दे रखा है उसने 12/200, 2 × 1/2, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, राइट। कटिंग कर लो, ये कटिंग भी हो सकती है, 2 के टेबल पे 2 6 था और ये 100, ये बचा 60,000 1 + 6/100, यहाँ बचा मेरे पास 1। अब ये एलसीएम ले लो, 60,000 या 100 + 6/100, एलसीएम लेने के बाद 60,000 106/100, 60,000 ये 106/100, ये 0 से ये 0 क्या होगी कैंसिल। अब 600 को 106 के साथ मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आएगा 63600, ये अमाउंट, बस उसने अमाउंट पूछी थी, हमने फाइंड आउट कर दी आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स के लिए। सेकेंड पार्ट उसने 1 ईयर बोला हुआ है, PR और T यही चाहिए होता है। अमाउंट तो उतनी ही है 60,000, R भी उसने उतना ही 12%, टाइम चेंज हो गया 1 ईयर, तो ये तो 1 ईयर ही है दे रखा, मंथ्स नहीं दे रखे हैं, तो ये कंप्लीट है। अभी हमें क्या करना है, फिर से एनुअली बोला हुआ, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली, तो उसके लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या है, P1 + वही जो हमने ऊपर यूज़ किया 200/2t, तो यहाँ आएगा 60,000 1 + 12/200, 2 × 1, ये फिर से कटिंग कर लो, 2 के टेबल पे 2 6 था और 200 था, 60,000 आ गया। फिर से आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेके अब यहाँ पार्ट 2 हो जाएगी, पहले 1 टाइम था तो 1 टाइम लिखा था, अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे उसने दे रखा है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा हमें। 106/100 पार कितनी है 2, तो यहाँ आप क्या लिखोगे 60,000 106/100, 106/100, ये 2 ज़ीरोज़ के साथ ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, ये 2 के साथ ये 2 ज़ीरोज़, अपॉन में तो कुछ भी नहीं बचा। 106 को 106 के साथ करो, जितना आए फिर से उसको 6 के साथ कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर सेकेंड पार्ट का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। One more question, question number 6, Arif took a loan of ₹80,000 from a bank। कहता आरिफ ने लोन लिया इतने रुपीज़ का बैंक से, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 years। अब एनम पर एनम पे लिया है, वही कंपाउंडेड एनुअली हाफ ईयरली, ये उसने टाइम दे रखा है। अब फर्स्ट पार्ट कंपाउंडेड एनुअली के अकॉर्डिंग निकालेंगे, सेकंड पार्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले तो P, R और T निकालेंगे, है ना। फर्स्ट पार्ट है कंपाउंडेड, एनुअली करना है हमें,
क्योंकि फर्स्ट पार्ट उसने बोला है कंपाउंडेड एनुअली, राइट। पी, आर और टी। पी उसने दिया है रुपीज़ हमें 80,000, आर उसने दे रखा है 10% और टाइमिंग्स देखो 1.5 ईयर्स दे रखी है, 1.5 ईयर। अब जब ऐसे दे रखा हो तो 1 ईयर के लिए हम अमाउंट अलग से निकालते हैं, हाफ ईयर पे जब कंपाउंडेड एनुअली दे रखा हो, 1 ईयर पे हम लगाते हैं कंपाउंडेड एनुअली का जो फॉर्मूला होता ही है सिंपली, और हाफ ईयर के लिए फिर हम लोग ऐसा ही यूज़ करते हैं, फिर उनको क्या कर देते हैं प्लस, वो हमारी टोटल अमाउंट बन जाती है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले लिखते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर, क्योंकि पहला साल ही है मेरे पास, फर्स्ट ईयर्स, राइट। तो क्या आएगा, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पार T। तो P है मेरे पास 80,000, 1 प्लस R कितना है 10/100 पार 1, क्योंकि टाइम उसने कितना दे रखा है 1 दे रखा है। एलसीएम लो, एलसीएम लेके हमारे पास आएगा 80,000 100 प्लस 10/100 पार 1, 80,000 ये आया 110/100, राइट। अब देखो 1 टाइम ही है तो इसको 1 टाइम ही लिखना है। मैं ब्रैकेट खोल देती हूँ यहाँ पे, ये 0 2 0 से ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई, जो भी बचा मेरे पास वो मेरी 1 ईयर की अमाउंट आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, ये आएगा 88,000। 11 को 8 से किया 88, 1 2 और 3 ये ज़ीरोज़, ये अभी 1 ईयर की अमाउंट आई। मुझे कितनी चाहिए 1.5 ईयर की, तो अभी जो बाकी के 6 मंथ्स बचे हैं उसकी निकालेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट के साथ। फॉर द लास्ट 6 हाफ ईयर मीन्स 6 मंथ्स है ना। तो ये मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P कितना था, अब ये P है मेरा, R कितना है हमारे पास 10, टाइम तो उसने 1/2 6 मंथ्स पहले ही हमने लिखा है ना, तो ये 100 हमारे पास फॉर्मूले में होता है नीचे। तो ये 2 ज़ीरोज़ के साथ ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, 2 की 88 के साथ कटिंग कर दो, 44 आएगा, पीछे 0 थी तो 0 आ जाएगा। 44 को 1 से किया 44, 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे आ गई, राइट। तो ये मेरी होगी सिंपल इंटरेस्ट। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट बन जाएगी। तो टोटल अमाउंट आ गई मेरे पास, रुपीज़ कर दो प्लस इनको, कितनी आएगी हमारे पास ₹92400। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट की कंपाउंडेड ईयरली, राइट। अभी इसी क्वेश्चन को कंपाउंडेड हाफ ईयरली करेंगे, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास है सेकेंड पार्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, राइट। उसके लिए भी P R और T चाहिए। P कितना था हमारे पास, वही 80,000, R है मेरे पास 10%, राइट। और टाइम उसने दिया 1.5 ईयर्स, मतलब अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाऊँ मैं तो क्या बनेगी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 3/2 ईयर्स। और अमाउंट हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R अपॉन 200 पार 2T। यहाँ आया 80,000, 1 प्लस R कितना दिया उसने 10/200, 2 इंटू टाइम कितना है 3/2, 2 से 2 तो हो गया मेरा कैंसिल। जब हाफ ईयरली देते हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है, इनकी कटिंग हो जाती है पार में, ठीक है। अब आप यहाँ पे कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर सकते हो, 0 से 0 नहीं करना चाहते हो तो भी ऐसे ही हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे बचा 3 है ना, 2 से 2 तो कट गया क्योंकि 80,000। अब एलसीएम लो तो ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो 80,000 ये बन गया 21/20 पार 3, या 80,000 3 बार इसको लिखना है, 21/20 ये 21/20, 3 ज़ीरोज़ तो कैंसिल हो जाएंगी, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4,
2 10 ज़ा 20, तो 21 को 21 के साथ किया, राइट, ये आएगा 441। फिर उस 441 को जब आप आगे करोगे मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास 9261, राइट। 9261 को जब 10 के साथ करोगे तो पीछे एक 0 आ जाएगी, मतलब ये आएगा मेरे पास 92610। ये हो गया मेरे पास अमाउंट इसका। तो वही अमाउंट उसने हाफ ईयरली और एनुअली कंपाउंडेड दोनों तरह से लिया है। अब हमें इसका डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस फिर से इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कर दो माइनस, जो बड़ी अमाउंट है उसको आगे रखेंगे, और उसकी अमाउंट कितनी आई थी हमारे पास 92400, माइनस करके मेरे पास आएगा ₹210। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. Next question number 7 we will do in our next lecture. Thank you.